also going inside. Arnab, come inside and show the visuals. This was their house. See, this was their house. मुर्शिदाबाद के डाक बंगलो स्टेशन में उससे सवाल उठते हैं कि सैकड़ों की जान किस तरह से जो है यहाँ पर रिस्क में डाली गई। কিন্তু আপনার প্ল্যানটা কি? আপনাদের প্ল্যানিংটা কি? बोल रहा है कि महिला लोग को काट देंगे। पुलिस कहाँ थी जब ये सब हुआ? पुलिस कहाँ थी? पुलिस ছিল না, पुलिस तो পালিয়ে গেছে। पुलिस पहले ही चली गई, ऐसा कह रहे हैं आप? पुलिस भाग गई थी पहले? পালিয়ে গেছে पुलिस। सब कुछ यहाँ पर जल के राख हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से देखिए जल के पूरा राख हो चुका है। मिल के आके पूरा हजार लोग आके हम लोगों का ऐसा करके ये सब जला दिया है हम लोग का। Homes reduced to ashes, voices silenced by fear. These are the chilling testimonies of families who had to walk away from everything they've known, not by choice, but driven out by force. This report is hard to watch, but it's a truth that must be told. Distraught families escaped in the dead of night. No time to gather their belongings. No time to look back. Just one thought: run and save your life. Times Now is on the ground in Murshidabad, highlighting the plight of Hindu families who came under attack after Friday prayers. We've seen how the family members of Hindus were attacked, their homes were attacked, their shops were attacked, and now we're seeing how the Hindu families are now escaping. They are fleeing. They have no other option but to flee and to go to safer locations. You see, there are people here who are now taking their children, and with only a few bags and only a few clothing items, they have been forced to vacate their houses and go to a safer place. We've been told that there are some families who are going to the nearby Malda district and also going to places in Jharkhand because their houses have been looted, their shops have been attacked, and there has been reports of arson, and they are all leaving. You can see there are hordes of these families who are being seen leaving this tensed area. It's become extremely volatile, and these people belonging to Hindu families have no other option but to save their life and livelihood. They are now fleeing this entire area, and there are a lot of these families who have already fled their homes because all they want to do is to save their life, and they are now seeking help from their own family members because they're saying that the government and police has completely failed to ensure safety and security to Hindu families, and as a result of which they have no other option but to flee. You can see there are more families here who can be seen packing their bags, and they are leaving this tensed area and they are going to safer locations. They're seeking help from their own people because the government has failed, and on the other hand they are also saying that more such companies of BSF should be deployed here. They are also demanding a BSF permanent camp here and demanding President's rule in this area, which continues to remain tensed and continues to see widespread violence here. And you can see there are more Hindu families here who haven't fled, but they are now trying to go to safer locations. Let me talk to someone. Sir, we would like to talk to you. We're seeing that several families since morning, they're fleeing, they're leaving their homes. Are they doing it to save their lives because state has failed to save them?
Exactly. Now there is no state. This government used to say "Khela Have." That day, actually, played has been done. They're fleeing, they're leaving their homes. Are they doing it to save their lives because state has failed to save them? Exactly. Now there is no state machinery is working here. This government used to say Khela Have. That day, actually, played has been done by the miscreant. And now they are moving. आज में हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत, आप तो ज्यादा सामान भी नहीं ले पाए हैं दीदी, आप तो थोड़ा ज्यादा सामान भी नहीं ले पाए। घर में सभी घर में आपके घर पे लूट भी हुई है? समझ में नहीं क्या बोलेंगे यार, क्या करेंगे यार, कहाँ जाएंगे यार, क्या खाएंगे। गांव जो है लगभग हिंदू परिवार यहाँ से दूर जा चुके हैं, घर पर ताले लगे हैं, और जो बचे कुछ लोग हैं वो देखिए अपना पूरा का पूरा सामान लेकर जो है वो सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। But were these attacks a part of a pre-planned conspiracy? Our ground report reveals how some houses were marked with ink and those specific houses were targeted. Was this done to make recognition easier for murderous mobs? We leave that for you to decide. मुर्शिदाबाद के धुलियान में जो हिंसा हुई, क्या वो हिंसा प्रायोजित थी? क्या वो हिंसा पूरे तरीके से सोची समझी साजिश के तहत किया गया था? क्या एक विशेष वर्ग को टारगेट किया गया था और उस टारगेट करने के लिए बकायदा जो है वो पहले रेकी की गई थी, निशानियां बनाई गई थी और फिर टारगेट किया गया था? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो चीजें देखने को मिल रही हैं, जो रिपोर्ट्स सामने आ रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, वो काफी हैरान करने वाले हैं। धुलियान में हम मौजूद हैं। धुलियान का ये घोष पाड़ा है, घोष मोहल्ला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो घर के बाहर जो है वो आपको ये इंक जैसे निशान नजर आएंगे। ये देखिए यहाँ पे तमाम जो घर हैं इनके पास आपको इसी तरीके से देखिए जो इंक है वो नजर आएंगे। और ये इंक आखिर क्यों डाले गए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इधर भी देखिए, सामने भी आपको इंक नजर आएगा। दूसरी तरफ यहाँ भी जो है वो इंक डाला हुआ है। इस इंक के पीछे का राज क्या है, ये पुलिस जो है उसको जांच करनी चाहिए कि आखिर ये इंक क्यों डाला है। लेकिन अगर आप देखेंगे और समझेंगे इस इंक को तो एक तरीके से यहाँ पर निशानियां बनाई गई हैं इन घरों के ऊपर, और ये वही घर हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ है, इन पे इंक के निशान हैं। इन घरों के ऊपर अटैक हुआ है। क्या हुआ था, ये निशानियां कैसे बनाई गई थी, क्या हुआ? निशाना कैसे बनाया हम लोग को पता नहीं है। हम लोग के छेनी तरुआल ये सब देके बाहर भाग दिया, हम लोग भाग गया, जल्ला उल्ला तोड़ के हम लोग भाग गया है। पूरा दुकान, पूरा घर में जितना सामान था सब लूट लिया है। ये एक बात बताइए, यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तमाम कुछ घर हैं, यहाँ पे इंक क्यों डाला गया है? क्यों दिया है? ऐसे हो तो काटेगा हम लोग का, ऐसे खून लगाएगा, इसीलिए ये सब निशाना दिया है। जैसे खून करेंगे ये लोग के, तो ये जहाँ जहाँ निशान है वहाँ अटैक हुआ है? हाँ, ये सब अटैक हुआ है। अटैक हुआ है, आपके घर में भी हुआ है? क्या है तो ये जो निशान है ये किस लिए दिया गया? पता नहीं है कैसे किया है, कौन किया है, हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन हम लोगों का ऊपर बहुत अटैक हुआ है, बहुत हमला हुआ है। हम लोग किसी तरह अपना जान बचाया है। Was this just a riot, or was it a carefully planned assault on an entire community? किस तरह से दंगाई का एकमात्र मोटिव था, और वो था कि पहले लूट मचाई जाए और उसके बाद जो है इस हमले को इस तरह से अंजाम दे कि किसी को लगे कि यहाँ पर कोई अटैक हुआ है। आप देखिए इस अलमारी के जो है निशान आपको साफ जाहिर करेंगे कि किस तरह से लॉकर को तोड़ा गया। यहाँ पर जो सोना, ज्वेलरी, जो कुछ उनको मिला, जो यहाँ पर सब कुछ उनका लूट लिया गया। जितना भी सामान यहाँ पर था वो लूटने के बाद इन्होंने आगजनी की। ट्रंक से लेकर वार्डरोब तक और अलमारी से लेकर यहाँ पर जितने भी शेल्फ्स है सबको आग के हवाले कर दिया। इसके बाद इस पूरे घर को आप देखिए यहाँ पर तांडव मचाया गया है। आप देखिए हर वो चीज जो है तोड़ी फोड़ी नष्ट कर दी गई है। Not the case of just one house. Every house in this particular village was systematically looted. Everything was looted, from their bed to television sets to refrigerators, valuables, jewelry, gold, silver, cash, even the cattle that these houses and these families have.
पूरा गांव जला दिया। 200 से प्लस घर में लूटपाट हुआ, 180 घर में जला दिया, पूरा घर बाड़ी सब कुछ जला दिया। पूरा मौलवी शुक्रवार जो नमाज पढ़ता है ना, मौलवी उसको माइक में मस्जिद में अनाउंस कर दिया, पूरा आदमी आ जाओ, हिंदू को मारो काटो, ऐसा बात हो रहा था माइक में शुक्रवार को। बांग्लादेश बनाए दिए। पूरा बांग्लादेश में रहते हैं हम लोग। अभी जो फिलहाल अभी जो टारगेट चल रहा है पूरा बांग्लादेश से, मुर्शिदाबाद पूरा बांग्लादेश चला गया। अगर ममता बनर्जी रहेगा ना 5 साल तो ये पूरा वेस्ट बंगाल बांग्लादेश बना देगा। चोटी चाटा लोग, इधर कोई कुछ भरोसा नहीं है। जब दंगा हो जाता है, जब लाश पड़ता है तब भी आता है, उसके बाद आता है, पहले नहीं आता है। ট্যাঙ্কের জলে বিষ আজকে দিয়েছে, খেয়ে খেয়ে ওই হয়েছে, খেয়ে বুঝতে পেরেছে। ট্যাঙ্কের জলও বীজ দিয়ে দিয়েছে, তাহলে ভাবুন কি অবস্থা। যে জলটুকু খেয়ে মানুষ বাঁচবে তাদের অবস্থা এই, জল খেয়ে মানুষ বাঁচবে, সেই জলটাকেও বীজ দিয়ে দিয়েছে, তাহলে ভাবুন। In the aftermath of the violence, we spoke to survivors, men and women who barely escaped the violence. They say that these attacks were not spontaneous. This was not about land or law. This was about hate. This, they say, was about pushing out Hindus from their homes. ये बताइए कि उस दिन जब घटना हुई थी उस वक्त आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे और क्या चल रहा था? जिस दिन घटना हुआ शुक्रवार दिन, उस दिन मैं घर में था। तो उस दिन जो हमारा गांव में मुसलमान है ना, उसका मीटिंग निकल रहा था, मीटिंग हुआ। तो शुक्रवार दिन में मस्जिद में बोला कि मीटिंग नहीं, वो हिंदू जितना है हिंदू को मार दो काट दो। किसने किया मीटिंग? किसकी मीटिंग थी? वो मुसलमान का मीटिंग था। मीटिंग था, हाँ। तो उस मीटिंग में नहीं गया, वो हिंदू परिवार के ऊपर आक्रमण किया है। तो सबको मस्जिद में मौलाना साहब बोला कि जिसका पास तरवाल छेनी जितना है सब लेके। आपने सुना ये अनाउंसमेंट? हाँ, सुना है। ये बताइए आप कहाँ थे उस वक्त जब घटना हुई? घर पे थे? আমাদের বাড়িতে তালা মারছিলাম, আগুন জ্বালাতে মানা করেছি, দিয়ে ঘাট মে দিয়ে ফির আবার বিএসএফ ছিল, তার জন্য আমরা বাঁচতে পেরেছি, না তো বাঁচতে পারতাম না। क्या बोलना चाह रहे हैं? वो जब आक्रमण किया है वो घर में था, तो जब वो मुसलमान लोग हमला कर रहे थे, वो लोग जल्दी से घर में ताला मार के भाग गया है। नहीं तब बीएसएफ गया है। बीएसएफ जब तक नहीं जाता तो हम लोग मर जाता है। बीएसएफ गया तो हम लोगों को जान बचा है। मैंने वहाँ पे मुसलमान 8-10 मुसलमान ने सारी आंचल खींच के টানা था। वो महिलाओं के साथ बदसलूकी की, बदतमीजी की, क्या हुआ? হাত ধরে টেনেছে, চুল ধরে টেনেছে, হ্যাঁ, দিয়ে বলছিল কি হিন্দুকে এমনি করবো অমনি করবো, আঁচল ধরে টেনেছে, দিয়ে জান বাঁচিয়ে আমি পালিয়ে গেছি। তেরেছে সুদ্ধা বিএসএফ কে ডাকতে গেছিলাম। क्या कहना चाह रहे, क्या किया महिलाओं के साथ? महिला का साथ जो साड़ी पकड़ रहा था, वो साड़ी छोड़ के चला गया है जान बचा के लिए। साड़ी खोल के चला गया। साड़ी खोल मतलब क्यों ऐसा? टांग रहा था, जान बचा के भाग गया। आंचल धर के टाना था, वो साड़ी छोड़ के जान बचा के भाग गया। उसका जो दादा उसका जो घर में खाना पकाना था ना, वो सब खाना पका रहा था। तभी उनका घर में हमला हुआ। उसका बाल धर के खींच रहा था। बाल खींचे? हाँ। उसका बाल धर के खींच रहा था। तो तब हाथ धो के उसका माफी मांग रहा था, तो भी माफी नहीं किया है। घर में आग लगा दिया है, वो जान बचा के भाग गया है। नदी में नौका में पार हुआ है। आपने भी बोला कि छोड़िए, ऐसा आपने बोला उन्हें छोड़िए? পায়ে হাত ধুয়েছি, हाथ पैर जोड़े आपने? ক্ষমা করেছি যে ছেড়ে দাও আমাদেরকে, ছেড়ে দাও, জানরা বাঁচাও আমাদের। যে না কিস্তি করে গাল দিছে, জান বাঁচাবো না, হিন্দুকে রাখবো না, মুসলাকে সব আমাদেরকে মুসলা হবি তুই, যদি তুই মুসলা হোস তোকে বাঁচাবো। क्या कह रहे हैं? हिंदू है इसीलिए किया, मुसलमान होंगे तो बच जाते हैं, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप? हम लोग हिंदू है ना, तो हम लोगों को बोल रहे हैं तुम लोग मुसलमान हो जाओ, नहीं तो यहाँ पे नहीं रह दूंगी। जी क्या कह रहे हैं? गोरखा पहनाने का है, क्यों गोरखा पहनो? बुरखा पहनने के लिए कह रहे थे कि आप बुरखा पहनिए, ऐसा आपको भी ऐसा बोला गया? साका सिंदूर सब बेच दो और गोरखा पहनो, हमारा जात हो जाओ, तुमको कुछ नहीं बोलेगा। आपके जात के हो जाइए, मतलब आप कन्वर्ट कर लीजिए, ऐसा कहने की कोशिश कर रहे थे आप? হিন্দু রাখবো না, আমাদের অঞ্চলে হিন্দু রাখবো না, হিন্দুকে
गुली मेरी उड़ाबो हिंदू के नहीं रखता है, हिंदू का कार देना है रकम करके। क्या कहना चाह रही हैं? वो लोग बोल रहे हैं पश्चिम बांग्ला मुर्शिदाबाद में कोई भी हिंदू नहीं रहना चाहिए। अच्छा, आपके ये भी बात सामने आई थी कि पानी में जो पानी के टैंकर है उसमें जहर मिला दिया, ये सही बात है? हाँ, বিষটা মিশাইছে, विष मिला दिया, ऐसा क्या? জলটা যে খাবো জলতে বিষ মিশাইছে, ভাতে বিষ মিশাইছে, খানা সবটাতে বিষ মিশাইছে। ওই জিনিসটা যে খাবো দাঁড়াইলে বাঁচবো ওটাতেও বিষ মিশাইছে। फिर क्या खाया आपने? जब खाने में जहर मिला दिया तो खाया क्या? আমরা দিন মানছে দিন কিছু খাইনি, আমরা দিয়ে রেজে हमने খেয়ে। तस्वीर देखी, 6-6 महीने के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। इन लोग जो कह रही है खाने में पानी में सब में जहर मिला दिया है, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, पानी भी नहीं खाया है। जान बचा बीएसएफ ने जब तक नदी में नहीं आया है सब लोग नदी में पानी खाया है। जब ये हो रहा था तो पश्चिम बंगाल की पुलिस कहाँ थी? क्या आपने पुलिस को कांटेक्ट नहीं किया? पुलिस को पहले अटैक किया है, उसमें ताला मार दिया है, पुलिस जान बचा के भाग गया है। पुलिस आपको छोड़ के भाग गया, आपको बचाने नहीं आई? जब महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही थी तब नहीं आए? তো আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, পুলিশ থাকতো আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, হিন্দুর মেয়েগুলাকে লিয়ে তারছে, পুলিশ থাকতেও বাঁচাতে পারেনি। আমরা बोल रहे हैं पुलिस उसका साथ था तो भी पुलिस कुछ नहीं कर सकता है, वो जान बचा के पहले ही भाग जाता है पुलिस। मुस्लिम के जो लोग हैं वहाँ जो वक़्फ़ जो बिल है उसको जो विरोधिता करने के लिए संतरास चलाया, हिंदू जो बाड़ी है उसको लूटपाट कर लिया और घर जला दिया, बॉम्बिंग किया, और जो औरत है उसके ऊपर रेप किया। सभी अत्याचारित तो जो पब्लिक है वहाँ जो नदी के पार नौका से इधर से यह पल्ललपुर यहाँ जो हाई स्कूल है इधर कैंप किया है। जो था सब तो हमको लूट लिया, तो हमको बोल रहा है जे कि तुम्हारा इज्जत दो तो हम तुम्हारा पति को भिक्षा देंगे, जान भिक्षा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं हमको। खाने के पानी जो है, पानी इज्जत लूटने की भी बात कर रहे हैं। हाँ, गले में जो है उसको हसुआ बोलते हैं, वो हमको गले में धर कर बोलते हैं जो तुम्हारा इज्जत दो, तो हम बोल रहे हैं जो करना है करो, किंतु हमको जान भिक्षा दो। Entire families forced to flee from villages they called home for generations. They now live in fear, in makeshift camps, clinging to safety and whatever is left of their dignity. डिमांड है यहाँ कैंप चाहिए, हमको कैंप चाहिए, बीएसएफ कैंप। हम लोग पुलिस प्रशासन था, ममता दीदी का पुलिस हम लोग को कोई भरोसा नहीं है। इतना घर जल गया, ममता का पुलिस रहता वक्त इतना घर जल गया हम लोग को। उसका जो मंत्री ये कुणाल घोष है वो थोड़ा एकदम पूरा मिथ्या बात बोल रहे हैं यहाँ कि यहाँ पर कुछ नहीं है, पूरा मिथ्या बात। कुणाल घोष को यहाँ भेजिए, हम भी घोष है, उस घोष को भेजिए यहाँ, देखिए क्या वो मिथ्या बात कैसे बोल रहे हैं। ये वहाँ पर कलकत्ता के ठंडा घर में बैठ के कैसे मिथ्या बात बोल रहे हैं, यहाँ क्या चल रहा है वो आइए यहाँ देखिए। और कुणाल घोष वहाँ बोल रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, वो मिथ्यावादी करता है। Just house, but their cash was also burnt. This was their savings that they had for their entire life. आपकी ये जमा पूंजी थी जो अब राख भर चुके, आपके पैसे थे, कैसे जलाए इन्होंने, कहाँ रखे थे आप? हम लोग घर में रखा था जमा करने के लिए, घर देने के लिए। हम लोगों का गाय भैंस जितना था सब बेच के, हम लोग जादव है, गाय भैंस बेच के हम लोग पैसा जमा करके रखा था घर देने के लिए। इन लोग आके सारा पूरा 4 गांव पैसे किस चीज के लिए जमा किए थे? ये हम घर बनाने के लिए जमा किए। घर बनाने के लिए जमा किए थे। फिर उसके बाद इन लोग 4 गांव मिलके आके पूरा हजार लोग आके हम लोगों का अटैक करके ये सब जला दिया है, हम लोग का सब जला दिया। We know to see such kind of pictures, and in fact we'll also go inside to show that what happened. This lady is taking us inside her house and will be narrating so as to what has happened. We are also going inside. Arnab, come inside and show the visuals. This was their house. See, this was their house. ঘর নইলে জায়গা তো দিবে না, ঘর নইলে সরকার দিয়ে দিবে, আমার ঘর তো কেউ দিয়ে দিবে না, আমার স্বামীটার পেটে ভাত। Nothing is left, everything has been turned into ashes. What they will eat, where will they go, how are they going to manage and start from ground zero again? This is the plight, this is the in fact you know the disastrous picture, and in fact they have nothing left right now with them. ऊपर से दिखाइए, you see the stoves, the belongings, the pillows,
The bed sheets, everything has been turned into ashes. They have nothing left. And again, their question is as to how the state government is going to help them. बताया पुलिस ने फोन नहीं किया है 20 बार 10-20 बार फोन किया लेकिन फोन उठाया नहीं उसके बाद दमकल को फोन किया फ्री फायर को वो भी उठाया नहीं एक दिन 2 दिन बाद उठाया बोला हम क्या करें. They never wanted a fight. All they wanted was to live in peace. But tonight, peace feels like a distant dream. In overcrowded relief camps, 50 to 60 people crammed into a single room, living without basic amenities like toilets or even clean water, hoping that someone somewhere will care. So we are reporting inside the relief camp. This particular school has been converted into a relief camp, and we'll show the pictures inside so as to how the families who had to forcefully flee, they are staying over here. These are the pictures over here. In fact, the visuals that we are giving you is from the evening, and this is the way the individuals, the people have to stay. This is the condition, and in fact, in one room we can, as of now, the individuals are outside, the family members are outside, but in one room there are a number of people who have to in fact stay over here. And in fact, they're also worried as to what is going to happen next. Such kind of rooms have been provided, not just room, but several rooms have been, provided over here to these victims who have to flee forcefully. दादा, यहाँ पर आप रह रहे हैं, एक कमरे में कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ रहता है ये कमरा बोला ना फुल जितना है ना स्कूल सामने ना का 400-500 होगा. एक कमरे में कितने लोग? एक कमरे में 50-60 होगा. 50-60 लोग एक कमरे में रहते हैं. हाँ. तो कितनी दिक्कत होती है रात को यहाँ पर रहने में? दिक्कत करने से क्या होगा? घर नहीं है, बाड़ी नहीं है, सब जला दिया. गर्मी है यहाँ पर, आपको 50-60 लोगों के साथ एक साथ यहाँ पर रहना पड़ रहा है. सभी कमरों में इतने लोग हैं यहाँ पर, तो पंखा भी नहीं है. ये तो पंखा है चल रहा है, वही में रहता है. वही पंखे है जो पूरे इतने बड़े कमरे में चल रहे हैं. केवल लगा देते हैं ना तब गर्म लगता है, गैस हो जाता है. इसलिए कल तो हुआ था ना जी. So in fact you can see that how the people are staying over here, the kids, the infants, from the old people, the elderly people, to the women, to the men, everybody have to face such kind of very bad situation where they have to stay like this under difficult circumstances. In fact, we will also speak to some of the victims who had to flee from Murshidabad and who are staying over here. दीदी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जयश्री मंडल. अच्छा, तो जयश्री दी, बताइए कि जब आप वहाँ पर थे क्या कुछ हुआ था आपके साथ, क्या कुछ घटना घटी थी, ये बता पाएंगे आप? हमारा आसपास गांव के सभी घर जल गया है, लगभग 150 घर जल गया है. हम 4 नंबर वार्ड का बासिंदा है. कुछ गांव बचा था, कुछ घर नहीं जला है. रास्ता में बहुत हलचल मचा था और ढील पटकल ऐसा बम फूट रहा था. हम भाग के आया है. आपके घर में कुछ लूटपाट हुई क्या? हमारा घर में कुछ लूटपाट नहीं है, मगर हम ठीक से ताला भी नहीं लगाए. पता नहीं आप घर का हालत कैसे है. These heartbreaking stories are a testimony of the suffering these families had to endure. Families who've lost it all, their homes, their sense of security, and the faith they once had in the system. All they want now is to be heard. Times Now will not let their voices fade. We will keep telling the truth. Bureau Report, Times Now.